host and our special invitee, Mr. Rahul Bajaj, advocate from Delhi High Court and Supreme Court. He is well known for looking after all the, especially issues pertaining to the person with disabilities. And recently, we have associated with his team for various cases as well as the other advocacy issues. First of all, let me welcome as the General Secretary of BBWA to all the participants. And you all know what VBY is, Visually Impaired Bank Employees Welfare Association, established in year 2014. Since we have been doing all such works which are directly impacting visually impaired as well as the person with disabilities, we have been persuading government of India, departments and banks managements, and even taking matters to the legal forum to get all those entitlement which we are given by the constitution as well as the different government OMs and court judgments are all in that direction itself. Reservation in promotion is a big issue for which, since the judgment had come into Supreme Court of India, we have been following to all the departments, ministries, and banks management, along with the RRB's banks also, so that reservation in promotion is implemented in the proper manner, and whatever is its benefit, it should go down to the every single eligible employee. And of course, on this issue, there is another concept that is called notional promotion. We will today discuss on that also. And of course, there is always a scope that whether we can expand the scope of this reservation in promotion, because as of now, we are in banks, it is given only up to the scale 1 officer rank, means from sub-staff to a staff and staff to the scale 1 officer. This has been restricted by the government of India, DOPT OM, but in our opinion, Supreme Court had not restricted it up to any particular level. So on this also, we will discuss with our Mr. Rahul Bajaj, and of course, our president, Mr. Rajesh Asdani, is also here. He is also a master of law and well known for his legal understanding and all these things. So let us go ahead and discuss upon this with all the clarification as well as what can be our future course of action to get more benefits under reservation in promotion. Thank you for participation. It's up to Rajesh sir, please. Yeah. Good morning. Good morning, everybody, and a hearty welcome to this webinar by VBWA, soon to be DBWA, right? So I'll be bilingual, right? Because we have people in Hindi and English, maybe both may be required here. So don't worry, anybody in Hindi, anybody in English. I'll try to be bilingual, and we have with us our distinguished guest, Advocate Shri Rahul Bajaj from Mission Accessibility and Zen Law Associates. Rahul Bajaj needs no introduction because all of us, everybody knows him, but it must be mentioned that Advocate Rahul Bajaj is a Rhodes Scholar. After completing his LLB with a gold medal from Nagpur University, he went on to do PG in Oxford from Oxford University by availing the Rhodes Scholarship. And the Rhodes Scholarship is a very prestigious, very dignified award, basically. And for those who may not know, is the same scholarship which Jawaharlal Nehru received for his studies abroad. So with such a distinction in law, and after coming back, he has put his knowledge to the good use by fighting the cases, not only in disability law, but also in other legal areas. And we are proud to have such a distinguished person from our blind community doing the legal work as well as the social work. So welcome, Rahul. And now we will go to our topic, which Himanshu ji has already introduced. So reservation in promotion जो है वो हमको बहुत सारे लोगों को चिंतित करती रहती है. बैंक में जॉब लग जाता है, we are in the service, but we want to move ahead. We don't want to stagnate.
एट अ पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत लंबा अरसा होता है 30-35 साल ಯಾರೋ सर्विस ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ का। ನಾ ಹೋಯ್ಗಂಡೆ और Rajesh sir? Suryajyoti madam, you are requested to first mute all except I have co-host done it, sir. because some noises are also okay. Okay. Yes, sir. Rajesh sir, your audio is not coming. Rajesh sir? Muted. yeah, now is it? Now, yes, Yeah, sir. now Yes. it is. Yeah, Now it yeah, is. I unmuted myself. Okay, right. Okay. So yeah, so when we talk about reservation in promotion after joining the job, एक बहुत लंबा अरसा होता है 30-35 साल का। यहाँ तक तो बात हो रही थी ना, everybody understood, right? Everybody heard it, right? At least. So एक it's a long time, तो उसमें हम stagnate नहीं होना चाहते तालाब की तरह एक जगह पे। We want to move ahead, and there are opportunities. Our cited colleagues go on at least 2-3 promotions in career, average person gets, right? So we also want to be like that. Now I will be interacting with our distinguished guest, Advocate Rahul Bajaj, and let it not be a monologue, so that I will be asking questions and covering various points, and then he will be telling uh, comprehensively about the reservation in promotion. वो क्या है, कैसे है, कहाँ तक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पहले मुझे यहाँ से शुरू करना है राहुल जी कि जी ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन को हम कहाँ, क्योंकि कोई भी चीज जब तक लॉ में नहीं है तब तक वो हमको नहीं मिल सकती, बाय डिफॉल्ट वो ऐसी चीज नहीं रहती है सारी जी चीजें। जी तो एक चीज होती थी जब 1995 का एक्ट आया, राइट तो उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था कि देयर विल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, दैट्स राइट जबकि 2016 के एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, देयर विल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। यस तो ये चीजें मैं समझना चाहता हूं कि व्हाट इट इज। और उससे भी पहले 1995 के एक्ट में लेकिन एक चीज लिखी हुई थी, देयर शैल बी राइट नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, सेक्शन राइट 47 में पुराने एक्ट के। तो ये आप राइट समझाइए कि व्हाट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन एंड व्हाट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन। Ji. So at the outset, thank you very much to Vibiva, for giving me this opportunity. हमारा नाता लंबा है and we have done many cases together Yes, and it's wonderful कि on a Sunday morning 35 people have turned up. That is not a yeah, small thing. yes, yes, So with that, let me say that in terms of your question specifically, which is the distinction between discrimination in promotion and grant of reservation in promotion. तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन की जो बात आती है दैट इज बेसिकली टू से दैट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन जो नॉर्मल करियर प्रोग्रेशन हो रहा है किसी बैंक एम्प्लॉय का विथ अ डिसेबिलिटी दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड और इम्पीडेड बाय वर्च्यू ऑफ देयर डिसेबिलिटी। इसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो एसबीआई वाला केस हमने किया है विवा के बिहाफ जी पे दिल्ली हाई कोर्ट में, जी जिसमें अभी 29 मई को जजमेंट आई है, जिसमें हमारी ये आर्ग्यूमेंट थी कि जो स्केल 3 से स्केल 4 या स्केल 5 में कोई बैंक एम्प्लॉय प्रमोशन अगर जिसको चाहिए in order to be eligible for the grant of promotion, there are certain mandatory assignments that you have to complete, which लेट मी is क्लैरिफाई हियर फॉर द ऑडियंस yes कि क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है, स्केल 1 से आगे हाँ रिजर्वेशन नहीं है नहीं कहीं है भी। ठीक है, करेक्ट। हाँ तो हाँ, ये रिजर्वेशन के अलावा नॉर्मल कोर्स में जो प्रमोशन होता है उसमें आर्ग्यूमेंट था कि स्केल 3 से स्केल 4 या स्केल 5 में प्रमोट होने के लिए आपको कुछ मैंडेटरी असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, नेमली आइदर यू हैव टू बी अ बैंक मैनेजर अ ब्रांच मैनेजर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, या तो आपको क्रेडिट ट्रेड फाइनेंस या फोरेक्स ये डिपार्टमेंट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। ये नहीं होगा तो आपको प्रमोशन मिलेगी ही नहीं। एंड इसके अलावा ब्रांच एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ मार्क्स उन लोगों ने असाइन किए गए थे। तो वो चीज हमने चैलेंज की थी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग
पर्सन्स विद टोटल ब्लाइंडनेस। लो विजन का तो उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों को वो दे रहे हैं या तो ब्रांच एक्सपीरियंस या तो ये क्रेडिट वगैरह वाले रोल्स, बट जो टोटली ब्लाइंड है उनको ये रोल नहीं दिए जा रहे, एंड दिए जा सकते भी नहीं है बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक डिफिकल्टीज दैट अराइज by virtue of complete blindness in performing these things in terms of collaterals को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड है या नहीं उसकी वैलिडिटी को चेक करना, इस तरीके की चीजें, या फिर ऑन साइट जाके चीजें चेक करना, ये पॉसिबल नहीं है। इट क्रिएट्स undue importance has to be given to cited help, like उसके अलावा ये नहीं हो सकता, और उसमें फिर वो पूरा काम ही आउटसोर्स करने वाली बात हो जाती है। तो ये आर्ग्यूमेंट था बेसिकली। तो इस पे फिर हाई कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि ये ग्रीवेंसेस को कंसिडर करके अपनी पॉलिसी को रिवर्क करो। तो वो हो गया एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन का। अब जैसे एक और हमने केस किया था ऑफ एन इंडिविजुअल हु वाज आई थिंक वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक, जिनका ये था कि उनको असिस्टेंट मैनेजर 1 से असिस्टेंट मैनेजर 2 तक प्रमोट नहीं किया जा रहा था। प्राइवेट बैंक था ये, एंड उनका ग्रीवेंस ये था कि बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी इनको एडिक्वेट तरीके से काम नहीं दिया जा रहा है, एंड ही इज नॉट बीइंग गिवन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। तो उस चीज पे फिर सीसीपीडी में केस गया था, और अल्टीमेटली दे डिड नॉट फाइंड देयर टू बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट इस तरीके के केसेस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन के होते हैं। मतलब रिजर्वेशन जी। या कहने का मतलब ये कि चाहे कौन सी भी स्केल में कहीं भी क्लास 4 से लेके क्लास 1 टॉप स्केल्स तक हम अगर प्रमोशन में मान लो एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना, वहां अगर डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे हमारे साथ कुछ भेदभाव होता है तो उसको राइट। हम डिस्क्रिमिनेशन में चैलेंज कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट चीज है। करेक्ट। रिजर्वेशन की बात अलग है कि कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। तो दैट्स राइट। वो एक डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिजर्वेशन इज आवर बेसिक राइट एंड विच इज, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से प्रमोशन में कहाँ तक। वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो तो वी कैन रेज आवर वॉइस एंड से, जैसे कोई बोले कि राइटर नहीं देंगे, राइटर कुछ भी, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन राइट। का। तो राइट। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन, जो 95 के एक्ट में भी लिखा था कि नहीं होना चाहिए, अभी भी लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे, है ना। राइट। जो नाउ सेक्शन 20 इंटू ब्रैकेट 3 है या 2016 एक्ट का, वो स्पेसिफिकली ये चीज बोलता है। या तो अब जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो क्या जी। 95 के एक्ट के हिसाब से आया या 2016 के एक्ट के हिसाब से ही आया है? तो एक्ट का जहां तक सवाल है, तो एक्ट तो 2016 के हिसाब से ही वो आया है, जी बिकॉज जो सेक्शन 34 इंटू ब्रैकेट 1 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, जो 4% रिजर्वेशन देने की बात करता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डिफरेंट जी। डिसेबिलिटीज को, विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर और डिसेबिलिटीज ऑफ द माइंड को, हम्म। वो एक प्रोवाइजो उसमें है जिसमें कहा गया है कि reservation in promotion shall be in accordance with guidelines that are issued by the appropriate government। तो हम्म। उसमें एक मैंडेट तो है कि reservation in promotion has to be given, बट कैसे दिया जाएगा उसके लिए वो कहता है कि guidelines are to be issued by the appropriate government। एक्ट में ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब मान दिस लीजिए वाज कि यस। 2016 में ऐसा लिख दिया। अब राइट। जैसा आप बता भी रहे थे ये मीटिंग शुरू होने से पहले कि कहीं कहीं पर गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट्स ने इशू भी नहीं की हैं अब तक। दैट्स राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस मान लो 2026 में 10 साल बाद इशू किए तो रिजर्वेशन तब से होगा या 2016 से होगा? अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड टू से कि 2016 से होना चाहिए, ऑन हम्म। द प्रेमिस दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसमें एक ओएम आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022-23 में सरकार को कहा था कि यू हैव टू गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2016। जैसे सीनियरिटी है उसके लिए हाँ नोशनली आपको 30 जून 2016 से ही मान के चलना होगा। और इस हाँ। चीज के in light of that, DOPNT came out with an OM on 28th December 2023 to give effect यस। to this judgment। तो हाँ। similarly an argument can be made at the state level also कि यस 30th June 2016 से तो देना ही है। जी। तो इस पूरी कहानी को हम समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। अब आपने कहा कि 2016 एक्ट में देयर इज एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, राइट? राइट।
बट हुआ तो ये है कि लोग कहते हैं कि 1995 के एक्ट में जहाँ अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट्स की बात है, राइट तो राइट अपॉइंटमेंट मतलब किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो या प्रमोशन से हो, और उस पर राइट केसेस भी लड़े गए। और इवन जो लैंडमार्क केस है राजीव कुमार गुप्ता का, राइट वो भी 1995 के एक्ट के हिसाब से ही बात करता है। तो ये कहानी थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टोरी टू अस कि हाँ हाउ द जी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन केम टू बी through this case under 1995 act itself. राइट। तो इसके लिए हमें थोड़ा और पहले जाना होगा। जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इंदिरा साहनी के मैटर का 1992 का, जी। उसमें ये कहा गया है कि रिजर्वेशन जो है वो केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो सकता है, प्रमोशन में नहीं हो सकता। जो हम्म। मंडल कमीशन का केस माना जाता है। जी। अब वो केस जो है वो रिजर्वेशन की बात कर रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें दो डिस्टिंक्शन हमें समझने जरूरी है। जो आर्टिकल 16 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी हम्म। पब्लिक ऑफिस है या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी की बात की गई है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मान लिया है गवर्नमेंट ना। जी। एम्प्लॉयमेंट में जी। या तो फिर गवर्नमेंट हो या तो मतलब गवर्नमेंट का स्टेक हो एटलीस्ट 51%। किसी हाँ। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में भी तो फिर वो गवर्नमेंट माना गवर्नमेंट। जाएगा, गवर्नमेंट जी। कंपनी माना जाएगा जी। या पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाएगा। तो नाउ देर आर टू प्रोविजन जो आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो जनरल प्रोविजन है आर्टिकल 16 इंटू ब्रैकेट 1 में, जो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी पब्लिक ऑफिस और पब्लिक अपॉइंटमेंट। आई एम पैराफ्रेजिंग बट बेसिकली या कोई भी या गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या एक ये हो गया। और एक है आर्टिकल 16 इंटू ब्रैकेट 4, जो कहता है कि स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट that special measures may be यस taken for their benefit, and that will not sort of violate article 16. So it या allows for taking of measures, जो रिजर्वेशन जिसको हम कहलाते हैं, अफर्मेटिव एक्शन जिसको कहलाते हैं, SC STs और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए। या ओबीसीज तो या। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले मैटर में कहा था कि ये जो आर्टिकल 16(4) है, that does not contemplate the grant of reservation in promotion। ये सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। राइट। हम्म। सो अब SCs STs के लिए टू गेट ओवर दिस, there was an amendment that was made to the constitution at 77th amendment if my memory serves me right, जिसमें हम्म। उन्होंने आर्टिकल 16 4A और 4B डाले, जो एक्सप्रेसली अलाउ करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो और जो भी रिजर्वेशनल प्रमोशनल बेनिफिट्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन के वो SC ST को मिले। बट हम्म। डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट बन चुका था बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, that there cannot be any reservation in promotion. हम्म। So, in this context, the judgment of the Supreme Court came to be delivered in the Rajiv Kumar Gupta case, जिसने ये चीज क्लैरिफाई की कि नहीं, ये जो डिसेबिलिटी वाला रिजर्वेशन है, that is not as a part of Article 16(4) of the Constitution, rather it is as part of Article 16(1) of the Constitution। कहने का मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना है डिजेबल्ड लोगों के लिए, उसी का पार्ट एक रिजर्वेशन है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रीटिंग हम्म। अनइक्वल्स इक्वली इज वायलेबल। जो दो लोग जो एकदम डिफरेंट पोजीशंस में हैं, उनको आप एक समान नहीं ट्रीट कर सकते। अगर कोई यस। डिजेबल्ड इंसान है तो उसको थोड़ा सा एक लेग अप चाहिए रहेगा, एक अफर्मेटिव एक्शन चाहिए रहेगा टू ब्रिंग हिम ऑन द सेम फुटिंग एज somebody हु डज नॉट हैव अ डिसेबिलिटी। तो जो अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन डिसेबल्ड लोगों के लिए है, दैट इज एज अ फैसेट ऑफ आर्टिकल 16(1). तो इसका पूरे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई करी सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस राजीव कुमार गुप्ता जजमेंट। द सेकेंड थिंग विच दे सेड इज दैट रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो पैरा 24 है उस जजमेंट का, तो रिजर्वेशन आपको देना है। जैसे आप बोल रहे थे रिजर्वेशन इज इन अपॉइंटमेंट, तो चाहे फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो या प्रमोशन के थ्रू हो, आपको रिजर्वेशन तो देना ही है।
ये चीज उस जजमेंट ने कही। सो ऑन दिस बेसिस जो लोग ये बोलते हैं कि 1995 एक्ट के टाइम से ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए, वो इस बेसिस पे बोलते हैं, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस था राजीव ये कुमार गुप्ता में। एक बहुत बड़ी, इट इज अ वेरी बिग थिंग विच यू हैव एक्सप्लेन्ड टू अस। लेट मी जस्ट अगेन पैराफ्रेज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी कि यस 16(4), 16(1) आर्टिकल, इनसे एक जनरल पब्लिक में उनको विशेष लेना देना, पर इसमें बात ये हो गई कि जैसे SC ST और OBC का रिजर्वेशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया प्रमोशन में जो रिजर्वेशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी था पहले लेकिन प्रमोशन में नहीं था। तो लेकिन डिसेबल्ड का रिजर्वेशन वो स्पेशल प्रोविजंस वाली बात में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसेबल्ड का रिजर्वेशन इज द पार्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ। तो वो इंदिरा सावने केस इतना बड़ा केस है, उसके तहत डिसेबल्ड का रिजर्वेशन नहीं आता है। दिस इज राइट अ टोटली अ डिफरेंट थिंग जो कि राइट इक्वलिटी का ही पार्ट है। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रमोशन में भी वो दिया जा सकता है, और राइट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल द एवरीवेयर। तो अगर राजीव कुमार गुप्ता के केस को हम देखें राहुल जी, तो जी उसमें तो दो बातें समझ में आती हैं उसमें, तो फिर क्योंकि एक टोटली डिफरेंट चीज है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन इटसेल्फ एंड दैट टू इन राइट प्रमोशन। तो एक राइट तो फिर 1995 से ही होना चाहिए, बैकडेट से ही दैट्स हमको राइट एजुटेशन करना चाहिए कि भाई 1995 से। और दूसरा, इट राइट शुड बी नॉट कन्फाइंड टू एनी स्केल, ये तो हाईएस्ट स्केल तक भी हो सकता है फिर राइट तो। राइट तो देन व्हाट डू यू से अबाउट इट? Absolutely. So the second wala part है definitely that let me start with that. So या I agree या with you because उसमें ऐसा कहीं भी क्रीमी लेयर, जैसे देखो इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है SC ST के लिए, कि जैसे ओबीसी के लिए, ओबीसी ओबीसी के लिए। सॉरी SC ST के लिए नहीं या होता, ओबीसी के या लिए, कि अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज द आइडिया इज कि we need to target the most marginalized components और segments of that population। जो इंसान ऑलरेडी अच्छा कमा रहा है उसको रिजर्वेशन देके क्या फायदा। सो दैट इज द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। तो डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कभी भी कोर्ट ने किसी भी जजमेंट में अभी तक नहीं दिया है, ये बोलते हुए कि आप इतने लेवल तक ही रख सकते हो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, और उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते। तो राजीव कुमार गुप्ता में भी ऐसा कोई भी अपर सीलिंग नहीं है। सो ऑन दिस बेसिस इट कैन वेरी वेल बी आर्ग्यूड कि जो आगे जाके जो ऑफिस मेमोरेंडा आए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ग्रुप ए जो है उसके लोएस्ट रंग तक कन्फाइन किया है, जो बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्केल 1 माना वन। जाता है, दैट जी इज नॉट इन लाइन विद दैट जजमेंट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि 95 से होना चाहिए, सो यस, अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार कोर्ट खुद बोलता है किसी जजमेंट में, जैसे आपको याद होगा हम लोग प्रॉपर्टी में एक डॉक्ट्रिन पढ़ते थे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल करके, जी कि जो जी। हम बोल रहे हैं वो आगे जाके अप्लाई करेगा, अभी तक जो हाँ हुआ है उस पे नहीं आएगा। तो हाँ। वैसा कुछ नहीं कहा गया है राजीव कुमार गुप्ता के केस में। तो कहने का हम्म। तात्पर्य ये है कि इट कैन बी आर्ग्यूड कि वो 95 से ही देना है, बट अभी तक कोई ऐसा जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है जिसमें ये चीज चैलेंज की गई हो या कही गई हो। जैसे 30 जून 2016 तो बड़ी क्लियर कट बात है, बट 95 से देना है ये चीज, एटलीस्ट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी जजमेंट कैटेगोरिकली सेइंग जी सो। जी। तो जो राजीव कुमार गुप्ता में इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आ गया, सच अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट आई वुड कॉल इट, राइट। तो उसके बाद भी द थिंग्स डिड नॉट मूव फॉरवर्ड वेरी रैपिडली। मैंने क्या हो गया उसके बाद, इतना लैंडमार्क जजमेंट आने के बाद भी वी डिड नॉट सी एनी चेंज हैपनिंग ऑन द राइट। ग्राउंड? तो इसका पहला रीजन तो ये है कि सी इवन विद इन द जुडिशरी ये एक कंटेंशियस इशू है, जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाला इशू है। अब तो खैर 2-3 जजमेंट्स आ गए हैं, बट हम्म। अर्लियर इट वाज अ कंटेंशियस इशू। आई विल जस्ट इंडिकेट टू यू। या। तो जो 2017 में राजीव कुमार गुप्ता की करेक्टनेस जो है, एक डिफरेंट बेंच था जिसने 2 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि भैया ये हमको देखना पड़ेगा कि ये जजमेंट सही है या नहीं इंदिरा साहनी वगैरह के हिसाब से। तो फिर एक 3 जज का बेंच बिठाया गया सीता राजू के केस में। हम्म। आपको मुझे 1 मिनट देना होगा, सॉरी, आई जस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर 1 मिनट। जी जी, श्योर श्योर। वी आर एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फ्रेंड्स, कि इतना बड़ा
लैंडमार्क जजमेंट आता है राजीव कुमार गुप्ता का 30 जून 2016, 30th June 2016, and even after that the things really don't move forward. As I said, it means that reservation in promotion should have been from 1995 itself. It also means that reservation in promotion should be there across the cadre, across the board, not confined in no upper ceiling. But still, after that, such a momentous judgment also, the things they have not moved forward till now. But even then, now after 2016 also, ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ऐसा कोई रेडिकल चेंज कहीं नहीं आया। तो ये क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये हम जानने के लिए आतुर हैं जी हमारे एडवोकेट राहुल जी से। तो वाई हाँ जी या जी हाँ जी, तो मैं वापस Even आ there गया हूँ। arises another question associated हाँ, with the same one, sir, that बोलिए। why it was implemented so late. नहीं, that is Right. what And yeah, we are हाँ, coming to that. and Yeah. that too in बिल्कुल। notional promotion, the financial benefits were removed. Only it नहीं was नहीं, in a वो तो notional. हाँ, कहानी के अगले अध्याय है वो तो, पर उस जी समय जी भी कुछ हुआ ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस समय भी कुछ हुआ ही जी नहीं इतना लैंडमार्क जी जजमेंट के बाद। तो 2017 की बात हो रही थी कि ये राजीव कुमार गुप्ता की जजमेंट को क्वेश्चन किया गया और एक 3 जज का बेंच बिठाया गया सीताराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मैटर में, जिसकी जजमेंट 2020 में आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये व्यू करेक्ट है जो राजीव कुमार गुप्ता का है, इन द सेंस कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है डिजेबल्ड का वो होना। हाँ बोलिए। या जस्ट आई विल स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट। जैसे हाँ 30th June 2016 को राजीव कुमार गुप्ता का जजमेंट आ गया, और राइट आप कह रहे हैं कि एक दूसरे केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू रीलुक एट इट, या राइट। तो पहली बात तो कुछ समय बीता होगा, एक आध साल तो बीता, तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन, जजमेंट जैसे आज आ गया तो इट इज सैक्रोसैंक्ट कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फोर्थविथ। राइट। तो वो सब 6-8 महीने क्या हुआ, सब सो रहे थे, क्या बट हुआ? वो चीज तो नहीं होती ना सर, प्रॉब्लम यही हाँ तो है हमारे देश में। अब जैसे देखो, जी जी। पिछले हफ्ते ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जो हमने एक केस आर्ग्यू किया था, जिसमें उन्होंने बोला है कि 4 हफ्ते में आपको फुल टाइम सीसीपीडी अपॉइंट करना है। ठीक जी है, वो जी। अभी पिछले पिछले वेडनेसडे का है, तो उस बात को 12 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे भी, तो 2-3 हम्म। और बार हमें कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए, कंटेम्प्ट भी फाइल करना पड़ तो सकता है। मतलब ये रियलिटी है कि आम आदमी सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो वो तो जादू की छड़ी है, तुरंत हो जाएगा वो तो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। ओके। और इसमें भी कंटेम्प्ट पिटिशंस लगते हैं, जैसे इस जी वाले इशू में भी कंटेम्प्ट पिटिशन लगा है, जिसके जी। बाद ही बात जाके गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आई है। तो जो तो दूसरा केस आ गया सीता राजू का, उसमें सुप्रीम हाँ कोर्ट को लगा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, राजीव कुमार को देखना पड़ेगा एक बार और। हाँ, तो तब वो अच्छा। तो 3 जज, क्योंकि जैसे अगर 2 बेंचेस हैं, 2-2 जजेस की, अगर उनको किसी चीज पे लैक ऑफ क्लैरिटी हो तो हम्म। लार्जर बेंच बनता है 3 जजेस का, जो जो ओके देखता है कि ओके। भैया सच्चाई क्या है सिचुएशन में। तो अच्छा दे देन अच्छा। सेड कि नहीं, दिस इज अ करेक्ट पोजीशन व्हाट राजीव कुमार गुप्ता हैज आर्टिकुलेटेड, सो वी हम्म। हैव टू गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन। एंड उसके बाद फिर ये बात आई कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम्म। और इसी के अगले साल 2021 में एक और जजमेंट आई लिसामा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की, जिसमें जी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये चीज को रीइटरेट किया कि आपको रिजर्वेशन देना होगा प्रमोशन के मैटर में भी, और राजीव कुमार गुप्ता एंड सीताराजू वाला लॉ जो है वो रीइटरेट किया। बट इसके बावजूद कोई ऑफिस मेमोरेंडम नहीं आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से टू हम्म। कंटेन द मोडेलिटीज फॉर दिस, की रोस्टर कैसे बनाने हैं, हम्म। क्या मैकेनिज्म रहेगा, और ऑल ऑफ दोज nuances और minutiae had not been worked out। तो हम्म। वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर की इन सीताराजू केस, एंड आई थिंक राजीव कुमार गुप्ता का भी केस क्लोज नहीं किया था उन्होंने अभी जी तक। जी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली तक भी वो चलता आ रहा है, सीताराजू का तो अभी भी चल रहा है, अभी 24 अगस्त को फिर से लगा हुआ है। ओके। So, because they are still monitoring compliance with the judgment. तो हम्म। so the outcome was कि ultimately then 17th May 2022 को DOPNT का एक ऑफिस मेमोरेंडम आया, जिसमें कहा गया कि 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में। वो लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए में दिया जाएगा, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए में दिया जाएगा
उसके लिए आपको एक अलग से रोस्टर मेंटेन करना है। जैसे हम बोलते हैं कि सीरियल नंबर्स 1, 26, 51 और 76, हर रोस्टर में ये 4 पॉइंट्स आपको ईयरमार्क करने हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए। और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होना जरूरी है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनका। तो ये सब हम्म। मोडेलिटीज प्रिस्क्राइब की गई, तो ये पूरा प्रोसीजर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब लेकिन किया। यहाँ हियर आई हैव अ फंडामेंटल क्वेश्चन। यस। देखिए, हमारे गवर्नमेंट की 3 शाखाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। राइट। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, राइट। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी राइट। का काम है कानून का इंटरप्रेट करना, अप्लाई करना पर्टिकुलर केसेस में जहां डिस्प्यूट आता है। ठीक है। राइट। तो यहाँ पे जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन 2016 वाले एक्ट में क्लियरली बोल दिया गया लेजिस्लेचर ने कि देयर शैल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दैट्स राइट। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम से कम 2016 के बाद तो कानून में ला दिया उन्होंने, वर्ड्स में भी ला दिया। पिछले दैट्स एक्ट में राइट। तो चलिए कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ होना चाहिए, उसमें एक्ट में नहीं राइट। लिखा था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी बोला था कि होना चाहिए। राइट। लेकिन 2016 में तो बोल दिया कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने भी। राइट। अब एज प्रेस्क्राइब्ड जो है, तो हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रोसीजर क्या हो, उसका किस तरह इम्प्लीमेंट हो, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, गवर्नमेंट का काम है, जो उन्होंने 2022 में किया। अब राइट। इससे 2 क्वेश्चंस पैदा होते हैं इस बात से। हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो प्रोसीजर डिफाइन किया उसमें उन्होंने ये भी बोल दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन विल बी ओनली अप टू द एंट्री लेवल ऑफ क्लास 1। दैट्स राइट। ये तो सब्सटेंटिव लॉ है जो लेजिस्लेचर का काम है बनाना। हाँ क्या हाँ। एग्जीक्यूटिव को ये अथॉरिटी है कि प्रोसीजर डिफाइन करते करते दे कैन ले डाउन अ सब्सटेंटिव पॉइंट ऑफ लॉ कि ये कहां तक बात होगी, कैसे कैसे होगी ये अलग बात है, कहां तक राइट। होगी। आई थिंक द एग्जीक्यूटिव इज ओवर स्टेपिंग इन दिस। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने 2022 में प्रोसीजर बनाया, इसका क्या मतलब है कि रिजर्वेशन 2022 से मिलेगा या 16 से मिलेगा? जी। तो जो पहला वाला पॉइंट है, आई एम इन अग्रीमेंट विद योर एनालिसिस दैट या इस तरीके का अपर सीलिंग या क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, वो या इस तरीके से लाना फॉर द एग्जीक्यूटिव, या it is a good, there is a good case to be made out to say that no, this is not in accordance with the act, because act में कोई ऐसे अपर सीलिंग नहीं दी नहीं। गई है, जी। एंड जजमेंट्स में भी कहीं पे नहीं दी गई है। सो यस। देयरफॉर आई मीन इट, एंड इन फैक्ट देर आर जजमेंट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी, जैसे पोस्ट, जिसमें ये चीज आई है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं, तो सुप्रीम हम्म। कोर्ट हैज सेड कि हो सकता है। सो देयरफॉर इन अदर कॉन्टेक्स्ट द कोर्ट्स हैव डेल्ट विद दिस इशू कि क्या है कि अपर सीलिंग प्रिस्क्राइब की जा सकती है क्या रिजर्वेशन के लिए, एंड दे हैव सेड कि नहीं की जा हम्म। सकती। सो यूजिंग दैट एज अ बेस, इस चीज हम्म। को हम चैलेंज कर सकते हैं। अब इसमें है ऐसा कि ये जो सीताराजू वाला केस है, ये जो अभी मैंने हम्म। बताया 24 अगस्त को लगा हुआ है नेक्स्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये चीजें मॉनिटर कर रहा है। और उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी बोली गई थी हम्म। कि confining the benefit of reservation and promotion to the lowest rung of Group A is not acceptable हम्म। because of what you just said. या। बट इस चीज पे कुछ खास ध्यान किसी ने कोर्ट का अभी तक आकर्षित नहीं किया है। एंड क्योंकि ये मैटर्स बड़े क्राउडेड होते हैं, 10-20 मैटर्स लिंक्ड होते हैं, प्रमोशन इन रिजर्वेशन प्रमोशन वाला आते भी हम्म। नहीं है 80% ऑफ द टाइम। तो इसलिए हम्म। इस चीज पे एक डेडिकेटेड पिटिशन फाइल करके हियरिंग करवानी होगी। आई थिंक दैट हैज हम्म। टू बी द वे फॉरवर्ड अगर इस चीज को हमें चैलेंज करना है तो। दैट्स नंबर वन। या। Number two is, in terms of whether it is to be from 2022 or earlier. So हम्म। on this, there is one judgment of the Supreme Court. तो basically, कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल किए ये सिताराजू वगैरह वाले केसेस में, जब ये हम्म। 17 मई 2022 से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ये बोलते हुए कि जजमेंट तो 30 जून 2016 का है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, यू हैव टू गिव इट विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2016। हम्म। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने एक 28 दिसंबर 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया
ये बोलते हुए कि इट विल बी फ्रॉम 30 जून 2016। और इसमें भी जो हिमांशु जी कह रहे थे, सी नोशनल सीनियोरिटी जो मिलती है, नोशनल प्रमोशन, उसमें बैक पे नहीं मिलती इवन एज अ हम्म। जनरल प्रिंसिपल, बिकॉज आपने वो काम थोड़ी किया है उस पोस्ट में। हाँ इट इज हाँ अ नोशनल थिंग जो मानी जा रही है कि सीनियोरिटी आपकी फिक्स होगी बेस्ड ऑन अज्यूमिंग दैट रिजर्वेशन होता। तो इसके लिए एक हम्म डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी डीपीसी बैठनी होती है। दे हैव टू देन टेक स्टॉक ऑफ अगर हम उस तरीके से रिवर्क करते हैं रोस्टर्स, तो हम्म 2017 में कुछ प्रमोशनल पोस्ट खुलेंगी, 2018 में कुछ हम्म खुलेंगी, तो उस हिसाब से लोगों को मिलेंगी। और इस पे केसेस भी हो रहे हैं, जैसे हमारा एक केस बीएसएनएल के अगेंस्ट, एक दो केसेस चल रहे हैं, अगर चाहिए तो आपको बता भी सकता हूँ उसके बारे में। हम्म तो इस चीज पे लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, बैंक्स के अलावा, मैं बता रहा हूँ, ये बोलते हुए कि हमको ठीक से नहीं दिया गया और बहुत लेट हमको नोशनल प्रमोशन दी गई है। जैसे 2022 में देनी थी तो 24 में दी गई है, ऐसा। तो ये हाँ, है तो अभी इसमें पोजीशन। ये है कि सी देयर वाज नो रिजर्वेशन फ्रॉम 2016 बिकॉज द अथॉरिटीज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट इट। कानून में तो था, दैट्स राइट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। दैट्स राइट। प्रोसीजर गवर्नमेंट ने ले डाउन करने में अगर 6 साल का वक्त लगा दिया, टाइम लगा राइट। दिया, तो उससे मेरा फाइनेंशियल नुकसान क्यों होना चाहिए? रिजर्वेशन स्टैट्यूटरीली तो दैट इज ट्रू। 2016 से था। दैट इज ट्रू, वो बात या है। या बट यही रहता है कि बिकॉज एक्सचेकर पे फिर बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है इन चीजों की वजह से, तो इसलिए हम्म इस तरीके की पोजीशंस ली जाती हैं। And, इस टाइप के इशू पे कोर्ट भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बिकॉज लाखों करोड़ों रुपए की बात है अगर सबका कंप्लीट करके हम्म। बैठेंगे और लेकिन बेनिफिट अभी देने पड़े। नोशनल प्रमोशन देना है, उसके लिए एग्जाम्स लेनी है, स्पेशली जो भी प्रोसीजर करना है, इवन रिटायर्ड हाँ। लोगों को भी देना है आपको, अगर वो उस समय एलिजिबल थे दैट्स राइट। दैट्स राइट। प्रमोशन के लिए। तो एम आई राइट? यस यस एब्सोल्युटली। और ये हो भी रहा है। हम्म और इसी के थ्रू फिर केसेस भी निकल, जैसे मैं दो केसेस का आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे हम्म एक हमारा केस चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। हम्म एक बंदा है जिसका ये कहना है कि वो एओ जो है, असेसमेंट ऑफिसर 3 से 2 उसको बनाया गया 2024 में। वो कहता है कि मेरे को 2022 में बनाना चाहिए था। हम्म। इस पे भी देखिए इंटरेस्टिंग इश्यूज आते हैं, जैसे कि 126, 51 और 76 वाले जो रोस्टर पॉइंट्स हैं। अब हाँ। कभी कभार ये लोग रोस्टर पॉइंट्स ऐसे फिक्स कर देते हैं कि भले ही कोई डिसेबल्ड इंसान हो भी इन द फ्रे, और इसमें थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस केसेस। तो बाकी हम्म। डिसेबिलिटीज वालों का ये कहना रहता है कि हम पीछे रह गए। एंड हम्म कभी कभार ये भी होता है कि वो लोग ऐसा रोस्टर पॉइंट एक पर्टिकुलर साइकिल में फिक्स करते हैं जहां पे कोई नहीं होता है विद अ डिसेबिलिटी, जबकि जो हम्म कोई हो वो लूज आउट कर जाता है। तो इस बंदे का ऐसा ही कुछ केस है। तो हम्म इस वजह से ये कहता है कि अगर 2022 में ठीक से रोस्टर पॉइंट फिक्स किया जाता तो मेरे को तभी मिल जाती प्रमोशन, ना कि 2024 में। और हम्म। इसके अलावा एक बीएसएनएल के अगेंस्ट भी दो लोगों का केस है कि उन्होंने जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए जो डीपीसी वगैरह बैठाई, उसमें इन लोगों को ओवरलुक कर दिया गया। तो ये चीज अच्छा हो रही है, और जहां जहां नहीं हो रही वहां लोग जाके केस भी कर रहे हैं। अच्छा। नाउ अब बात मेन एक बात आती है कि हाउ टू एक्सपांड द स्कोप। अभी वी नो कि इट इज कन्फाइंड टू द एंट्री लेवल ऑफ द क्लास 1 एज पर द DOPTOM ऑफ May 17, 2022। ये राइट। हो चुका है प्रैक्टिकली, ऑल्सो इट इज बीइंग गिवन ओनली। और उसमें भी थोड़ा हमको विविवा हैड टू फाइट कि क्लास 3 से जो स्केल 1 है बैंकिंग की, अगर मैं बात करूं, हाँ तो इट हाँ। वाज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली 2022 का OMB। So we wrote to the राइट। authorities, to the ministry as well, and then now by and large it is being implemented. लेकिन हो हम्म। सकता है कहीं 25 में इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं 24 में हुआ। एक्चुअली 2022 से होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। तो जी। उसमें भी केसेस आ सकते हैं, उसमें भी ग्रीवेंसेस जरूर आ सकते हैं कि 2022 से क्यों नहीं रिजर्वेशन एटलीस्ट टिल द एंट्री लेवल ऑफ क्लास 1 दिया गया हमको। वो भी हो सकता है, राइट। पॉसिबल है। राइट। पीपल मे राइट। हैव जीनियन ग्रीवेंसेस अबाउट इट। तो उस पर भी हम आएंगे, बट द क्रक्स important thing is that can we think that the scope should be really be expanded to cover the higher posts also in the class 1? जैसे बैंकिंग की बात करूं तो स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पोस्ट होती हैं। हाँ उसमें एक हाँ। इंटरेस्टिंग चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा। पहली बात तो हाउ कैन वी डू इट, व्हाट आर्गुमेंट्स डू वी हैव फॉर इट। और दूसरा ये है कि
okay, even though our reservation is different from the reservation for SC, ST and OBC, Article 16(4), and our is under Article 16(1), लेकिन उनको कहां तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाता है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह करके गवर्नमेंट ने लाई है चीज, एंड दे आर मच बिगर लॉबी देन पीपल विद डिसेबिलिटी, SC, ST एंड OBC. तो उनका रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी कन्फाइंड होता है क्या एंट्री लेवल तक या कि कहीं तक, और what can we do about expanding the scope of this now? Right. So, so far as your second question is concerned first, Yeah. ये मुझे actually check करना होगा कि उनके वाले में upper ceiling क्या है. I haven't examined this issue frankly, but जी. this much I do know कि one of the pushbacks against grant of reservation in promotion to persons with disabilities is कि अगर हम इनको ज्यादा देंगे तो फिर बाकी communities भी मांगेंगी. अब जैसे जो आरबीआई वर्सेस AK नायर का एक केस है जी जिसमें जी. सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने को कहा है उस बंदे को, हाँ. इवन इन द प्री 2016 एक्ट रिजीम Yeah. से रिलेटेड Yeah. है उसके फैक्ट्स. Yes. तो उसमें भी एक जस्टिस रविंद्र भट्ट का ओपिनियन है जिसमें उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है अभी के लिए तो दे रहे हैं हम, बट वी नीड टू सी कि आगे जाके और कम्युनिटीज भी ना मांगे. एंड इवन इन द स्टेट्स फॉर एग्जांपल जहाँ पे अभी नहीं हो रहा है रिजर्वेशन प्रमोशन, जैसे उड़ीसा में, I know कि that is one of the reasons why they are not doing it. So I'm not directly answering your question because I don't know कि upper ceiling क्या Yeah. है, but this is just something that I wanted to put on the table. Yeah. Now, so Yeah. far as your first part is concerned, कि can it be argued that it should be higher than scale 1 also? Then yes, it can definitely be argued in terms of what we have discussed till now, that there is no upper ceiling in the act or the judgments. कुछ एक limit still would need to be set. Like it could I don't think it will be up to the very highest levels for the reason that जैसे आर्टिकल 335 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है that diversity has to be balanced with efficiency of administration. So they will say that beyond the point, we have to select the best people for that role regardless of anything else, like not based on reservation. तो कुछ लेवल के ऊपर तो वो प्रॉब्लम, मतलब वो एक जेन्युइन बात भी है आई फील, बिकॉज ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि merit has to be understood in a multifarious manner, not just in terms of कौन उस प्रमोशनल एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर रहा है, बट community representation, diversity, etc., etc. All of which is true, but beyond a point, you will have to select objectively the best person for the job. तो वो चीज तो I don't think can be denied, भले उसको tyranny of merit बोलो जो भी बोलो. So वो है. But surely it can be argued that like what is done now is not in line with the judgments and the act also. So, I mean, do you see, suppose, I mean, just I'm telling the hypothetical situation. Right. Suppose Vibiva or DBIVA, future DBIVA, decides. I mean, it's not happening. I mean, our audience also, please don't misunderstand me. But suppose we decide to go and file a case, yes, this is not fair. Scale 1, confining it only to scale 1 is not fair. And what chances do you see for such a case, I mean, of succeeding? See, much depends on the bench that it goes before. I would say before this scale 1, what would be more helpful is because this is something which is a slightly, more complex issue than just challenging that 17th May 2022 OM. तो पहले उसको चैलेंज करना जरूरी है क्योंकि वो लोएस्ट रैंक इन ग्रुप ए बोला है, बिकॉज उसका फिर इक्विवेलेंट स्केल 1 बनता है. तो अगर वो चीज कोई चैलेंज करे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा मेरे हिसाब से. हाँ, नेचुरली तो वही चैलेंज करना होगा, और उसका फिर कॉन्सिक्वेंशियल जो बेनिफिट है वो बैंक्स में भी फ्लो करेगा, मिलेगा. हाँ, नेचुरली जनरली it चैलेंज can be करना done. पड़ेगा. I think it can be done, and there is to my mind at least, it's a good argument to say that subject to some posts that you may, for example, keep out of the regime of reservation. As a general rule, kind of don't keep it confined up to the lowest rung only. Because neither the legislature has confined it nor the Supreme Court has confined it in their judgment. So executive cannot overreach and just decide
this is the ceiling point for it. That's right. That's right. So it stands a good chance as per you, According to me, yes. Yeah. So let us see what in future how it happens and what we decide. So Right. now I think we can open At the the floor very for least, at the yeah. very least, हम्म this matter which is going on, जो 24 अगस्त को अभी लगा है, हम्म इसमें आप लोग सोच सकते हो कि अगर आपको एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन इंटरवेंशन फाइल एप्लीकेशन करनी राइट है, यस ताकि ये यस चीज थोड़ी ज्यादा फोर्सफुली कोर्ट के सामने रखी जा सके कि ये, बिकॉज अभी तक एक ही ऑर्डर में इस चीज का रेफरेंस है, उसके बाद से दे सीम टू हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस ऑल टुगेदर। जब तक ओके कोई लॉयर एक्सप्रेसली पॉइंट आउट नहीं करेगा, दैट इज how it is, because court itself won't go into it. Yeah. So now we can open the floor for questions. But before that, let me clarify. जो क्वेश्चंस होंगे वो दे विल बी कन्फाइंड टू टुडेज डिस्कशन। कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज में कंफ्यूजन है, बिकॉज इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस प्लीज डोंट टेल दिस इज नॉट द फोरम फॉर इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। उसके लिए राहुल जी आपको गाइड करेंगे कि अगर आपके इंडिविजुअल कोई ग्रीवेंस, आप एक तो विभिवा को लिख सकते हैं इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस वी कैन डिस्कस इंटरनली, एंड एज वेल एज राहुल जी भी आपको गाइड करेंगे उसके लिए कि अगर आपका जीनियन कोई इंडिविजुअल ग्रीवेंस है और आप कोर्ट में भी जाना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो आप कैसे उसको ले जा सकते हैं आगे। वो तो आपको गाइड करेंगे। तो आप पहले राहुल जी वही बता दीजिए, अगर किसी का इंडिविजुअल जीनियन ग्रीवेंस है तो विभिवा में तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन जी, अगर लगता है आगे उसको ले जाना है तो फिर वो क्या कर सकते हैं उसके लिए। राइट। सो इसके इसके दो चैनल्स होते हैं। एक तो जस्टिस कनेक्ट हमारा हेल्पलाइन होता है एवरी जी थर्सडे फ्रॉम 5:30 to 6। ये आप कॉल कर सकते हैं, हम ग्रुप्स पे भी डालते हैं, विभिवा के भी और हम्म। बाकी ग्रुप्स पे भी। जी जी तो उस पर आप कॉल करके यू कैन गेट एडवाइस। बट जो लोग नॉर्मली वर्कफोर्स के बाहर होते हैं, उनको हम ज्यादा उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं, जो लोग कंसल्टेशन फी भी ना दे पाए, क्योंकि हम्म। उसमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो एक इंडिविजुअलाइज्ड हर इंसान का डिटेल नहीं हो पाता। तो अगर आपको जी इंडिविजुअली एक कंसल्टेशन बुक करनी है, तो वो भी आप आधे घंटे का या 1 घंटे का कर सकते हैं, और उसके अप्रोप्रिएट फिर फीस भी होती है। तो ये है। हाँ, तो वो आपके उसी ईमेल या नंबर पे कांटेक्ट करके वो बुक कर हाँ, सकते हैं अगर आप मुझे कंसल्टेशन। रीच आउट करेंगे तो मैं अपने कलीग अमृतेश से आपको कनेक्ट कर दूंगा, मतलब जो भी कोई रीच आउट करेगा, एंड ही हम्म। विल देन फाइंड अ सूटेबल टाइम एंड लाइन या दैट अप। या so we know we can take up some questions about the श्योर। today's session, about the जी, clarification of some points which were discussed today. श्योर। Yeah, so Surajyoti madam, Yes, you yes, can mute everybody. I have allowed them. Sir. Okay, so friends, if anybody is having any doubt, any question, any Some people supplementary have raised question, their hand, तो ज्योति जी, maybe if you want to call on them one by one. Yeah, Payal Chitra. She raised the hand actually. Hi, good afternoon. Yes, Can good you hear afternoon. me? Yes, yes. Yes, yes, good yes. afternoon. Hi, Please hi tell. everyone. Right. Okay, it was very interesting. I was listening to everything and lot of clarifications. Now my question is related to the discussion earlier on discrimination in promotion, Uh-huh, and at an individual level, if that is felt. And this I have already discussed with Vibiva team, uh-huh. and already also sent an email to Mission Accessibility. Already tapped the resource that Rahul ji you mentioned about Thursday evening. But I'm Okay. not sure if any of you have looked at it, because I haven't got a report. So how do we take this forward? I'm talking about myself and हम्म। my individual, case. तो आपने जस्टिस कनेक्ट में कॉल किया हुआ है? हाँ जी. तो मेरे से बात हुई थी या अमर से, या किससे बात हुई थी? Amar knows about it, and I've अच्छा। sent an email also. हाँ The जी, क्या same, इनपुट दिया था उन्होंने आपको? we'll call you back, sort of. अच्छा, You अच्छा। connect back. ओके, क्या इशू है आपका? Like the last promotion was 2017. Now हाँ, the three criterias that were expected in Bank of Baroda was your grade, which has always been what they wanted. Second is the e-learning, which has always been what they wanted, in spite of the हाँ, portal not being accessible. Okay, हाँ। the learning portal. And the achievement, which I have more than proof of that, including ठीक the है। regional managers and managers. The only thing is that I have been writing for accessibility, and I'm not sure if this is a factor that could be coming in the way,
बिकॉज जहां पर लिखना है तो मैं लिखती हूँ पोलाइटली, ब्रिंगिंग एंड सजेस्टिंग दैट ये सॉल्यूशन भी है, ये भी है, हमारा चैलेंज है, हमारा इन द सेंस करना ही है। इट्स नॉट लाइक यू नो एज अ वी आई एम आस्किंग, वो जो आरबीआई का है ना एक्सेसिबिलिटी, सो could that be a factor because it's been more than the तो number आप of कौन से years. बैंक में है मैम? Bank of Baroda. And the second ठीक thing है, is until तो now आप ऐसा सब, करिए मैम, हाँ जी, यू जस्ट व्हाट्सएप मी, आप एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए बिकॉज आपका इंडिविजुअलाइज्ड केस है, सो आई हैव टू सी द रेलेवेंट पैरामीटर्स एंड आपके क्या फैक्ट्स हैं, तो दैट विल बी अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन। तो यू जस्ट व्हाट्सएप मी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, देन वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन विद यू समटाइम दिस वीक। sure, I'll pick it up from मैं अभी somewhere. बता रहा हूँ, आप नोट Yes, कर yes, we लीजिए। will share you. Right now, even अच्छा, Mr. Yeah, Bajaj can because share हाँ, मैं you. then अभी the बता रहा हूँ, jaws आप will नोट come कर in the लीजिए। way. 98902 Just give me. Nine eight 902 8 9 0 2. 81068 Sorry, 8 1. 068। 81068. हाँ जी, 98902 81068। Okay, थैंक यू। Yeah, thank you. thank you. Yeah. Next, who has raised the hand? Suryajyoti Ma'am? रमेश हाँ सर, Yeah, please, नमस्ते। Mr. Ramesh. हाँ Namaste. सर। सर मेरा हाँ एक जी, सवाल, वो नोशनल प्रमोशन के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हाँ तो हाँ हमारे बोलिए। बैंक का भी निकला है ना, 2026 में उन्होंने आईओएम निकाला है, हाँ हाँ तो उसमें लिखा है कि सैलरी बेनिफिट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एज्यूम टू पोस्ट, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द एज्यूम टू टेक द चार्ज, लाइक दैट। Assuming the charge. Okay. डेट Which ऑफ bank? एक्चुअली अज्यूमिंग द चार्ज, बैंक ऑफ राइट। इंडिया। Bank of India. और दूसरे पैरा में उसमें के बाद लिखा है कि अगर सब्सिक्वेंट प्रमोशन हुआ होगा आपका बीच के इसमें प्रमोशन प्रोसेस में, तो हाँ आपको हाँ सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट्स ही नोशनल मिलेंगी। जी। तो तो ये तो उसमें बात हुई थी सर हमारी कि जैसे नोशनल प्रमोशन में वो एक्चुअल में बैक पे नहीं दे रहे हैं, मतलब हाँ, बिकॉज लेकिन दैट। अगर काम किया होगा तो कैसा है सर? अभी मेरा कैसा है कि मेरा हाँ हाँ मेरा ज्वाइनिंग है 15 का, मेरा प्रमोशन नॉर्मल कोर्स में हो गया था 20 में। ठीक है। उस टाइम बैंक ने नहीं किया था रिजर्वेशन अप्लाई। हाँ हाँ अभी जो आईओएम आया उसमें लिखा है कि 22 से उन्होंने अप्लाई किया है। राइट। तो और उसमें लिखा है कि अभी मेरा जो नोशनल है इफेक्ट वो 2018 से दे रहे हो, हम्म तो मेरे को अभी 26 में जो मिलेगा सिर्फ इंक्रीमेंट ही मिलेगा। लेकिन जो पहला लाइन मैंने बोला ना, उस हिसाब से तो उन्होंने मेरे को 20 से देना चाहिए ना, फिर मैंने 20 में चार्ज लिया था। राइट राइट राइट, नो मेक सेंस। तो आपने इसके बारे में लिखा है उनको? नहीं, लिखा नहीं है अभी तक। हाँ, तो आप एक लिखित में भेजिए उनको, ऐसा बोलते हुए कि आपने एक्चुअल चार्ज 2020 से लिया है और उसमें लिखा है कि इट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल अजम्पशन ऑफ द चार्ज एंड बट स्टिल मुझे आप लोग, वो लोग कब से दे रहे हैं? 2022 से दे रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो 16 के हिसाब से ही दे रहे हो सभी को। अभी नया नया नहीं आया नहीं, है। बट इस हाँ, पर्टिकुलर पोस्ट मैं को जो आप, एलिजिबल 18 से हो रहा हूँ। बट आप कह रहे हैं कि आपको नहीं, वन सेकेंड, आपने 2020 में कौन सी पोस्ट पे प्रमोट हुए आप? स्केल 1 में हो गया। स्केल 1 में, और आपको और आप ये कह रहे हैं कि इसका पेमेंट आपको स्केल 1 का कब से मिलना चाहिए? हाँ, स्केल 1 का मेरे को प्रमोट 18 से मिलना चाहिए। अभी जो नहीं, बट उन्होंने आपने आया है। एक्चुअली तो 2020 में अज्यूम किया ना रोल, हाँ, 20 में तो एज्यूम किया। हाँ वो इसीलिए नहीं दे रहे बिकॉज नोशनल प्रमोशन में बैक पे नहीं देंगे, तो मतलब 2018 से 20 के बीच में स्केल 1 में अगर आपको तब प्रमोट करते तो जितना आपने कमाया रहता वो फिर से वो फाइनेंशियली हाँ, नहीं वो दे रहे नहीं हैं देंगे, वो। वो ठीक है, वो भी मेरे को हाँ समझ हाँ रहा है क्योंकि मैं हाँ हाँ काम ही नहीं किया मैं स्केल 1 में। राइट। लेकिन 20 से तो मैंने स्केल 1 में काम किया ना। तो वो आपको स्केल 1 का कब से दे रहे हैं? फिर 22 से दे रहे हैं? नहीं, अभी 26 से दे रहे, सिर्फ इंक्रीमेंट, नोशनल अच्छा इंक्रीमेंट ही दे अच्छा रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, सुनिए रमेश जी, आपने हाँ दो हाँ स्केल यहाँ वन थोड़ा आप कंफ्यूज है, 2020 यस में सर। हो गए, 2020 में आप स्केल 1 हो गए, तो आपको हाँ पेमेंट तो स्केल 1 का ही मिल रहा होगा ना। हाँ, मिल रहा था ना, ठीक है। हाँ, तो लेकिन वो दो फिर क्या इंक्रीमेंट्स दिक्कत? कम ही पड़ गई ना अभी। तो आपका हाँ कहना है नहीं कि तो वहाँ तो 2018 से आपको इंक्रीमेंट देना नहीं, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा ना कोई।
आपकी सीनियोरिटी बढ़ेगी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू विल बी एलिजिबल, मींस जो आप 2020 में आप एलिजिबल स्केल 1 बने, और वहां से नेक्स्ट 3 इयर्स में आप जो स्केल 2 के लिए एलिजिबल होते, वो आपका बैक जाके वो 2021 के आसपास में आपकी एलिजिबिलिटी स्केल 2 के लिए बनेगी, क्योंकि वो आपका नोशनल जो प्रमोशन माना जाएगा वो 2018 से माना जाएगा। तो जो 3 इयर्स का क्राइटेरिया है, लाइक you must complete 3 years in that particular grade to be That's right. eligible for the next grade. I हाँ think वो वो ठीक है, आपको वो समझ में आ सीनियोरिटी गया। बेनिफिट मिलेगा। हाँ अब सीनियरिटी तो नहीं, इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे, सीनियरिटी मिलेगी पर फाइनेंशियली इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने लिखा है ना वो, फिर मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या है वो पता नहीं है, लेकिन हमारे बैंक में वो दोनों भी डाला है उन्होंने। एक उसमें ये भी एक पैरा में ये डाला है कि एज्यूम टू पोस्ट चार्ज लेने के हम्म टाइम से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, और हम्म दूसरे हाँ पैरा में लिखा है कि आपका अगर प्रमोशन हो गया होगा उसके बाद में हम्म बीच में, हम्म तो सिर्फ आपको सैलरी इंक्रीमेंट ही नोशनल मिलेंगी। तो वो क्लैरिफिकेशन चाहिए था सिर्फ, इस मतलब। केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ऑलरेडी स्केल 1 की पे ले रहे हैं। जिसको हाँ नहीं मिल रहा होता उसको मिलता, आपको रेगुलर इंक्रीमेंट ही मिलेंगे, नथिंग एल्स, और सीनियरिटी आप मिलेगी। ऐसे एक काम कर सकते हैं, वो जो आपको लेटर मिला है वो हमें शेयर करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको फर्दर ये कर पाए कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका। हाँ ठीक है, आप चलिए। हमें एक बार शेयर करिएगा। हाँ ओके, चलिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स, एनीबडी? Sir, one more question I have. Uh-huh. In Your central good name, government job, please. like Your name, yeah, your name. Name my and name is bank. Subhadeep Patra. I am working in Canada Bank. Uh-huh. Yeah. So I just want to know, in central government job also, is there promotion like from level 7 to level 8 or level 6 to level 7? These promotions, are they getting like the reservation they मतलब are getting or outside of not? नो banks नो you are asking? Yeah. सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो Yeah. लाइक लोएस्ट रैंक ऑफ ग्रुप ए तो है ही ना। लाइक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट हैं, और ग्रुप ए का जो लोएस्ट रैंक है उसमें तो रिजर्वेशन मिलना है वहां तक यस, प्रमोशन में। आई थिंक ग्रुप ए स्टार्ट्स फ्रॉम लेवल 9, जहां तक मुझे समझ आता है, याद है। मे बी लेवल 8 या 9 से ग्रुप ए स्टार्ट होता है, तो टिल लेवल 9, तो फ्रॉम लेवल 7 to 8, 8 to 9 मिलेगा उनको। Okay. And one more thing, in the Mhm. promotional exams, like there is no provision of compensatory time till now. So can that No, be? no, it is there in all exams for person with a visual impairment and those who yeah, like orthopedic, whose typing or writing is impacted. They all get Yes. 20-minute extra Okay. time per hour, regardless Okay. of whether reservation is there or not. Those are the basic amenities provided by Ministry of Social Justice to a person with disabilities. तो Okay. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन रेज योर वॉइस अबाउट दैट। यस। Sir, my question is Himanshu sir, please sir. नहीं, you are asking your question to our distinguished guest, Yes, your good name, Advocate Rahul please. Bajaj. Rohit Kumar Singh sir. My Hmm. question is yeah, timing for branch hour Himanshu sir. नहीं, देखिए ये आज के नो सेमिनार नो का प्लीज क्वेश्चन इस नहीं है, प्लीज। पर्टिकुलर Okay, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें जी। Okay, sir. हमारे Okay, डिस्टिंग्विश्ड sir. गेस्ट, उसके लिए हमने उनका समय लिया है, तो आप लोग इससे बेनिफिट उठाएं, और इस मैटर पे और कुछ जानना चाहें और कुछ फर्दर एलोबरेशन चाहते हैं आपको, Okay, तो sir. प्लीज One question, कम sir. फोर्थ। हेलो, Next, Sambit यस यस, Das. उल्लासनगर बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ जी। ये जो प्रमोशन है, जो 2018 से 2022 23 तक ही है क्या सर? 23 25। हेलो, नहीं ऐसा नहीं, मैं समझा नहीं, पूरा बताइए किस कैसे बोल रहे हैं आप? मैं बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ हम्म। हाँ ये जो अभी प्रमोशन, आपने रिजर्वेशन प्रमोशन जो है 2028 2018 से तो 2022 तक ही दिया है क्या इन्होंने रिजर्वेशन का? नहीं, 16 से देना है सर। 30 जून 2016 से उनको नोशनली कैलकुलेट करना है, एंड हाँ हाँ गोइंग फॉरवर्ड स्केल 1 में मतलब हाँ हर हाँ साइकिल में देना है। जैसे कि 12651, और बेसिकली होता ही है कि 100 पॉइंट का एक रोस्टर बनता है, ठीक है, हाँ हाँ हर हाँ ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में भी।
तो हाँ जब भी 126, 51 या 76 ये रोस्टर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मान लो 10 पोस्ट का वो प्रमोशन कर रहे हैं, 70 to 80 रोस्टर पॉइंट्स पे वो बनते हैं, तो उसमें उनको हाँ एक पोस्ट रिजर्व करनी है। तो दैट वे हाँ उनको 2016 से ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन आई मीन गोइंग अहेड, हर हर साइकिल में जब भी प्रमोशन हो रहा है, जब कभी ये पर्टिकुलर रोस्टर पॉइंट्स आएंगे हाँ हाँ। अप फॉर कंसिडरेशन, तो ये उतनी पोस्ट को ईयर मार्क करके चलना है। तो जिसमें कि इंटरेस्टिंगली राहुल जी, एक चीज ऐसे हाँ भी हो सकती है, आई मीन सॉरी हाँ फॉर कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन हो सकता है इससे। मान हाँ लीजिए 23 वैकेंसीज हैं, रोस्टर हाँ पॉइंट्स चल रहा है 2 to 24, ठीक है, तो हाँ उसमें नहीं रहेगा, तो कोई उसमें नहीं रिजर्वेशन रहेगा, नहीं रहेगा नहीं, इसमें, है और ना, वो उसमें 23 मांग भी नहीं वैकेंसीज सकते में फिर, मांग भी नहीं सकते आप। बिकॉज हाँ, ओवरऑल सो लॉन्ग एज 4% या है, दैट इज ऑल दैट इज या दैट इज हाँ सफिशिएंट, लेकिन या लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में तो 2022 तक और 2022-23 तो की दिया है ना सर जी। तो 23-24 और 25-26 जो प्रमोशन को बैठे हैं तो उनका क्या होगा? तो वो रोस्टर पॉइंट देखने पड़ेंगे कि जो पर्टिकुलर वैकेंसियां उन्होंने पुट आउट की थी, हाँ वेदर दोज फॉल विद इन द रोस्टर पॉइंट जिसमें रिजर्वेशन लागू होता है या नहीं। अगर रिजर्वेशन लागू होता है तो फिर हाँ। उनका ना देना गलत है, और अगर नहीं होता है तो फिर देन इट इज एक्सेप्टेबल। तो इस चीज पे आप एक क्योंकि आरटीआई, हाँ और सीनियर लोग है उनका तो वैसे रह गया ना सर, फिर जो उन्होंने एग्जाम भी दिया है और उनका नंबर नहीं लगा है तो सीनियर है वो, उनका क्या होगा? तो उन्होंने 2023-24 में एग्जाम को बैठे थे वो। नहीं, बट उस टाइम पे रिजर्वेशन नहीं है ना 23-24 में, आप बोल रहे हैं अच्छा। वो क्यों तेईस नहीं है चौबीस वो देखना पड़ेगा, एक्चुअली तो होना चाहिए, हाँ इतना हाँ कम पोस्ट हाँ, तो नहीं निकलते, 23 वही बोल पोस्ट रहा से हूँ मैं तो सर। ज्यादा ही हाँ, निकलते हैं। क्योंकि हाँ ऑफिसर के लिए तो हर 3 साल में तो हर साल में तो वैकेंसी निकलता ही है ना सर। नहीं नहीं, वो कितना राइट। निकलता है और कौन से रोस्टर पॉइंट्स हैं वो देखना पड़ेगा। जनरली हाँ 200 400 500 तो हाँ, होते ही है सर, तो लोअर उसमें रन तो में होना मिनिमम चाहिए, मिनिमम उसमें तो छोटे होना से हाँ छोटे चाहिए। बैंक में नहीं सर, रहेगा। हमारे तो, बैंक में क्या किया है अभी, जो बैंक ऑफ इंडिया तो से वो बोल रहा हूँ मैं, हाँ हम्म। मैं हाँ तो उन्होंने क्या लिखा है कि वो 22 के बाद का है, वो नेचुरल हाँ जो प्रमोशन हो रहे हैं हम्म। उसमें ही वो प्रमोशन रिजर्वेशन दे रहे हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, उसके नॉर्मल लिए जो वो नोटिफिकेशन निकल रहा होगा ना उसमें रिजर्वेशन हाँ, होगा। तो उसके लिए नोशनल जो इफेक्ट दिया है वो 4 सालों हाँ के लिए 6 सालों हाँ के लिए दिया है, हाँ, 16 हो से सकता है, 22 पॉसिबल जी है, जी, 22 यहाँ के पे बाद नहीं बहुत है। डिस्टिंक्ट है, दोनों चीजें आप ध्यान रखें। हो सकता है कि बैंक ने 2022 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अगर इम्प्लीमेंट हाँ डायरेक्टली हाँ, नहीं किया वही होगा, वही। और हाँ अगर हाँ वो अभी कर रहे हैं तब तो उन्हें ये नोशनल कॉन्सेप्ट तो पीछे के लिए है, 2016 से वो ये 22 होगा। तक। लेकिन जब से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद अगर किसी को नहीं दिया तो देट मे बी अ केस कि वहां पे वो एग्जाम्स या स्पेशल ये लेके बैकलॉग को क्लियर करके उनको उस डेट से वो प्रमोशन का दे सकते हैं। हाँ, नोशनल वही तो वही 2016 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके वही बाद में वही जो कंफ्यूजन है जिस मेरा डेट सर, से। जी जी, क्योंकि तो वही मेरा आप पता कंफ्यूजन है, करें क्योंकि कि मेरा एग्जाम भी अच्छा गया था 23-24 का भी। तो आप ये पता करें कि उस वक्त क्या रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, और अगर वैसा किया हमारे नहीं किया गया था तो कारण क्या था। वैसा रिजर्वेशन हमारे बैंक में तो बताते ही नहीं है ना कि नहीं अभी किस जो लिए आप खुला रखा आरटीआई है। डालिए ना इस इशू पे, हाँ, आरटीआई हाँ डाल हाँ। के आप पता कर लीजिए, आरटीआई बहुत डाल के इजी है पता ये। करिए कितनी वैकेंसियां थी, उसमें अच्छा। कितनी रिजर्वेशन। आपको क्या, आपको विजुअल, आप सब लोगों को विजुअल ही है ना यहाँ पे हाँ जो सर, भी है। हाँ बराबर है सर, हाँ तो क्योंकि आप हम पूछिए हम ऑफिसर और ब्लाइंडनेस। मैनेजर को पूछते हैं ना सर, वो कुछ रिप्लाई नहीं देते सर, हाँ हाँ, अच्छा तो नहीं नहीं, अच्छी आरटीआई तरह से बात मैनेजर नहीं कैसे करते ये खुद लोग। जानेंगे, ये सब तो एचआर हाँ के कॉर्पोरेट लेवल पे ये सब चीजें हाँ होती हैं, वो लोकल हाँ, लेवल पे मैनेजर्स भी नहीं जानेंगे। अच्छा नहीं नहीं राहुल नहीं, जी, वही। देयर इज वन क्वेश्चन हियर कि हाँ सिंस हाँ लाइक issuance of the OM giving reservation in promotion 2022, राइट। उसके बाद अगर किसी बैंक ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली वी कैन आस्क देम टू clear the backlog as well as give the effect along with the financial benefits since the date of issuance of the OM। यस। क्योंकि यहाँ पे तो नोशनल तो हम 2016 में कोर्ट जजमेंट के प्रीवियस डेट के लिए नोशनल का हम यहाँ पे ओएम मान सकते हैं, बट देन ऑनवर्ड्स तो ये तो या टोटल लाइक दिस इज अ यस फेलियर एंड यस द यस। नॉन एक्चुअल अजम्पशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफ द रोल पॉलिसी। ही होना चाहिए था, इफ दे आर प्रॉपर्ली डन इट, ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ तो ये आई एग्री एग्जैक्टली। विथ यू कि 2016 से 22 वाला पीरियड में नोशनली करना रहेगा, उसके बाद से दे इफ दे हैव टू डू इट लाइक फॉर एवरी साइकिल, सो इफ दे हैवंट यस। डन इट
then definitely that is a valid cause of एंड दे हैव टू action. एक्चुअली डू इट। अगर नहीं भी किया है तो अभी एक्चुअली विथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको करना पड़ेगा, Right. थैंक यू सर। क्योंकि 2016 से 22 तक तो गवर्नमेंट का फेलियर था, हाँ 22 के हाँ बाद बैंक का फेलियर हो गया ये। Right. हाँ Yes, वही वही here I would like to share one incident with our audience, our participants, about recent activities undertaken by the Viviva. Like two RRBs where we came across the notification, promotion notification, where they did not mention about reservation in promotion. एक था गुजरात ग्रामीण बैंक, जहां पे हमारे स्ट्रॉन्ग लेटर के विदिन 4 hours they issued corrigendum, और जिसमें डीएफएस को भी हमने रोप इन किया था। डीएफएस से बहुत ही स्ट्रांगली उन्हें बोला भी गया था कि आप करें। उसके बाद बैंक ने हमें भी रिप्लाई किया कि हमने सेम डे में कोरिजेंडम निकाल दिया है, तो दे इम्प्लीमेंटेड इट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेम केस there. I like on the behalf of Viviva, we have also demanded that since 2022, after the issuance date of that OM, आपको एक्चुअल बैकलॉग कितना आपने रखा है, दैट यू हैव टू क्लियर विद द ऑल एसोसिएटेड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल वन, ये भी आपको देना है। एंड ऑफ कोर्स नोशनल के बारे में भी हमने लिखा है, हालांकि अभी तक बैंक का जवाब नहीं आया, बट वी बिलीव कि वी कैन राइट दिस टू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आरआरबीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेट मी क्लैरिफाई दिस फ्रॉम राहुल। यस, 2016 से 22 की नोशनल की लड़ाई लड़नी है जिसने नहीं किया, बट आफ्टर 22 ये बैकलॉग की लड़ाई है जो हमको विविवा की तरफ से लड़नी पड़ेगी, ऑलमोस्ट विथ ऑल द बैंक्स, बिकॉज नन ऑफ द बैंक्स इंप्लीमेंटेड इट इन 2022। राइट राइट। तो ये बैकलॉग की लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल बी विद द फाइनेंशियल बेनिफिट, दे हैव टू एक्चुअली डू इसमें इट। बस एक चीज देखनी होगी कि जो डीएफएस का सर्कुलर आया है, ये मुझे भी इसकी डेट एग्जैक्टली नहीं मालूम, सो विल हैव टू चेक इट। ये बोलते हुए कि lowest rung of group A, in the context of banks amounts to scale 1, and banks also have to follow this OM of 17th May 22। ये आप लोगों को मालूम है कि वो डीएफएस का सर्कुलर मेरे कब पास आया वो है? सर्कुलर है, मिनिस्ट्री हैड सेंट डायरेक्टली टू विविवा व्हेन इन द मैटर ऑफ आरआरबी केस इन सीसीपीडी। तो वो कब का है वो सर्कुलर का डेट क्या है? वो डेट आई थिंक सेम 2023 का उन्होंने इशुएंस है सर, आई विल शेयर इट। तो वो 23 से फिर बैंक्स आर ऑब्लिगेटेड। आप लोग वो अपना, बिकॉज वो लोग ये आर्गुमेंट ले सकते हैं कि बैंक्स को कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली नहीं बोला गई थी ये चीज, तो जब से वो डीएफएस ने बोला है कि नहीं बैंक्स आल्सो हैव टू डू इट, तब से आप बोल सकते हैं कि दे हैव टू एक्चुअली डू इट गोइंग फॉरवर्ड, एंड जहां जहां नहीं किया है, I mean, you can compel them to take necessary steps. So 23 से, but actually राहुल जी, it is very surprising, I mean एक ले पर्सन के लिए सरप्राइजिंग है। मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट है अंडर आर्टिकल 12, राइट, तो जब हमने बोल दिया कि गवर्नमेंट को करना है, मान लो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हैज नॉट इशूड इट, वो 4 साल बाद इशू करेगा तो 4 साल बाद, तो ये तो दिस इज, आई मीन दिस कॉल्स फॉर एक्शन, आई मीन मैंडेमस, आई मीन। तो ये भी चीज बोली जा सकती है कि the time interval between the two is not something which is attributable to people who are affected by it, तो इसलिए 17 May 22 से भी मांगा जा सकता है, because all the public sector banks fall within the definition of state. Right. So ipso facto it applies to them. Yeah. Right. Because a particular ministry or particular university fails to bureaucratic inaction cannot be the ground for delay. That's right. It can be argued like that, definitely. Yeah. Any other questions or 3-4 लोगों ने hand raise किया है। Yes. Samvit Das और EC member. Good afternoon, sir. Yeah. सभी को Good नमस्ते। afternoon. सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होगा या नहीं, बट इस टॉपिक के साथ ये पैरेलली चलेगा। वो है ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि अगर हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, तो प्रमोशन के साथ ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो डर रहता है, इसके वजह से नॉन डिसेबल्ड कम्युनिटी में भी ये काफी कॉमन है कि लोग ट्रांसफर के वजह से ही प्रमोशन नहीं लेते हैं। तो इन जनरल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये तो है ही है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग ये टॉपिक को टेकअप कर रहे हैं तो उसके साथ हमको ये भी करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। यू आर राइट। तो इसमें सर जजमेंट्स भी हैं
कि जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि प्रेफरेंस देना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को पोस्टिंग एंड ट्रांसफर में, बट जैसा आपने राइटली ऑब्जर्व किया, कभी कभार प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर लिंक्ड इन द सेंस कि ओनली इफ यू आर विलिंग टू गेट ट्रांसफर्ड विल यू गेट प्रमोटेड। तो ऐसे में कोर्ट्स हैव एक्चुअली रूल्ड अगेंस्ट मतलब एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है 1-2 महीने पुराना, जस्टिस संजीव नेरुला का, जहां एक बंदे को दिल्ली से कलकत्ता जाना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू टेक अ हायर पोस्ट एज अ डिजेबल्ड पर्सन। तो उसने ये कहा कि जो नॉर्म्स हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के, वो कहते हैं कि मुझे प्रेफरेंशियल मिलना चाहिए, बट कोर्ट सेड नो, नथिंग डूइंग, ये पोस्ट प्रमोशनल पोस्ट है ही केवल कलकत्ता में। तो अगर आपको लेना है तो जाना तो पड़ेगा। आप दोनों चीजें नहीं मांग सकते कि प्रमोशन भी मिले और मैं यहीं पे स्टेशन रहूं, दोनों चीजें साथ साथ नहीं मिल सकती। तो वो होता है क्योंकि कभी कभार जेन्युइनली भी हो सकता है ना कि उनके पास प्रमोशनल पोस्ट हो ही ना इन योर इसके इसके दो तरीके हो सकते हैं देखने के। एक तो ये कि उनके पास प्रमोशनल पोस्ट है ही नहीं, मान लो जहाँ कहीं आप स्टेशन हो, तो फिर उनकी क्या गलती, मतलब वो आपके लिए तो अलग से पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे। एक तो ये व्यू हो गया। पर दूसरा ये हो गया कि आप डिसेबल्ड इंसान को ज्यादा हार्डशिप सब्जेक्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेन करियर प्रोग्रेशन। तो बट इसमें वैकेंसीज का भी होना जरूरी है मेरे हिसाब से, दैट इज व्हाट इट विल ऑल टर्न ऑन। तो अगर Yeah, that आपके is what स्टेशन has में been discussed in that Punjab National case also, Bajaj Sahab. That the वो 3 person लाख जिस पे फाइन got लगा था। promoted from scale हाँ 3 to 4, but vacancy was there in Calcutta. But despite that, he हाँ was transferred to Patna, and court हाँ, वही वही overruled वही। that. Yes. हाँ, So the crux is the vacancy should be there at शुड बी that देयर। particular station. हाँ, If it अगर is है there, तो फिर देन यू हैव अ गुड केस। हाँ and डेफिनेटली if सर, not, then of क्योंकि course, ये सर, क्योंकि एक प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इन मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इन अ स्मॉल टाउन और विलेज और रूरल एरिया, ये हाँ, दोनों सेम नहीं होंगी बिल्कुल रियलिटी ग्राउंड बिल्कुल में। बिल्कुल। और तो सर, इसका और यही एक है, छोटा सा वैकेंसी पे क्वेश्चन, बहुत डिपेंड करता है। हाँ बताइए। ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी राजेश सर ने एक पॉइंट आउट किया कि स्टेट जहाँ पे भी रिटर्न होता है वी पीएसबीज भी उसके अंदर आते हैं। बट सर, ये हाँ मेरा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग था कि कहीं तो मैंने पढ़ा था स्टेट में आपके गवर्नमेंट मशीनरी और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो आते हैं, बट बैंक भी आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक उसके अंदर में। बिल्कुल आएंगे, बिकॉज आई वुड आर्ग्यू दैट, आई मीन, सी एनीवेयर वेयर द गवर्नमेंट हैज, बिकॉज इस पे काफी जजमेंट्स हैं, जैसे अजय हासिया वगैरह राजेश सर ने भी पढ़े हुए हैं, एंड इट्स अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल या फंक्शनल कंट्रोल है किसी भी बॉडी पे, so then that qualifies as state within the meaning of Article 12 of the Constitution. So it doesn't just have to be actual government body, but so long as the government has significant control on its running, it qualifies as state under Article 12. हमारे में जहाँ वो फाइनेंशियल स्टेट है। डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है ना, मोर देन 50%, 51% Right, वाला डिस, वो शायद फिर बाहर आ जाएंगे स्टेट से, right, right. ऐसी एंटिटीज। ओके, थैंक यू सर, ये एक नया लर्निंग था like आज के मेरे लिए। IDBI. Okay. मोर देन 51% का डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन मोर देन हाँ, जी जैसे जी 50%। जैसे यूटीआई एएम, मतलब बैंक का नहीं, बट हाँ। अदरवाइज ऐसा हमें केस कर रहे हैं अभी यूटीआई एएमसी का के बारे में, कि वो जब उनका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑफ दैट। तो ओके, थैंक यू तो वो सर। कह रहा है मोर Okay, देन 4 so पर्संस हैव रेज देयर हैंड। तो मैं भी दो तीन दीप्ति, और फटाफट लेके देन या 12:30 yeah, मे पे बी, two वी more कैन या questions बिकॉज let us have, टेन and टू हाँ मोर। it's 11:20, sorry, yes, 12:20 near या about. So या हाँ हाँ Hello, yes, yes, am I audible, sir? हाँ yes, जी या yes, Yeah, yes. actually, sir, I'm a orthopedically handicapped person, हाँ and I got promoted to scale 2 in April 2026. राइट। As per विच this बैंक? Bank of India, Your name and हाँ bank, please. my name is Deepti Nair, and I'm from Bank of India. हाँ Yes, actually, I wanted to know, as per that notional promotion list, I had appeared from clerical to scale 1 in 1st of November 2020, and later in राइट April 2021. In April 2021, I got promoted to scale 1. So now, हाँ as हाँ per the circular, my notional promotion is backdated from 1st of November 2020. So my question was, will my fitment change in scale 2 as per the circular of this notional promotion?
So I am not. What does fitment in this context mean? Actually, sorry, I'm not aware Means of this. actually, sir, my then my years of service as a scale 1 Yes, officer becomes yes. 5 years, then scale 2. So will हाँ my हाँ, तो वो माना scale जाएगा. change? माना जाएगा ना? That's what I wanted to know. So you are I had a asking if your seniority will be counted from November 2020. Is that your question? No, sir, I'm not asking about the seniority. I'm asking Ah. that will there be any fitment changes in salary as a scale 2 officer because my promotion is backdated. Understood. No, even in the scale What 1, is your their salary is date? from What April is their date? 2021. Only 5 months difference only. Yeah. Between actual assumption of charge and Yeah. the notional. Yeah. तो So उस 5 financial महीने का benefits will will be it be from counted or not? no, June because 21. they financial benefits will be from the assumption of charge. हाँ, June 21 Okay, से. okay. Yeah. Yeah. So there could be a fitment change as per the chart, right? No, I mean financial benefits from the assumption of charge, right? Okay. So as a Okay, scale okay. 1 also you drew your salary from April 2021, not from November 2020. Okay. Yes. So the same will apply, same will continue here also. Right. Okay, Yeah. fine. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. Right. Next is Right. Subhadra. Rohit Patel. Rohit has already asked. We discussed with Rohit. Then Subhadra raised Hello, her Rahul hand. ji. हाँ जी. Rahul ji, good afternoon. This is Venkat from Bank of Baroda. Uh-huh. I am scale 1 officer, sir. My doubt is one query, sir. Uh-huh. Actually, in Bank of Baroda policy, promotion policy is very tough, sir. Regarding Baroda Gurukul app is there. We are learning some subjects. We got 2 marks and also A grades, A grade, double A, double B. Uh-huh. That type of internal. My question is, sir, every time we are qualifying the promotion exams, but only call to caste reservation promotion. Example, in our Vijayawada region, in OBC category, total 60 members are qualified, sir. I am also VA person, but 59 participation fighting with OBC category. My question is, why are you separately called to disabled category promotion? From I scale don't 1 They to are 2. not giving disability reservation. Is Yes, that your yes, sir. issue? Scale My 1 question, to 2, they will not give. not Only scaled. No, no, sir. In Bank of Baroda, not only scale 1 to up to DGM level also. Nikita Madison, you know. But my question is, my management asking, no, you are not as disabled. We are all equal opportunities are there. Anytime, not only promotion, exams also, marks also, Baroda Gurukul also. We are all participation with all category. You are not separate PWD, you are not VA. What So is the this issue, sir? standards of What is suitability are not being relaxed further for persons with disabilities vis-a-vis able-bodied persons is his grievance very from what I very can tough, sir. understand. Very tough, sir. Suppose but general category person he got 90 marks. I am also getting also 90 marks. हाँ, समझ Same गया. equal opportunity, but नहीं तो what इसमें is तो सर दे the हैव टू रिलैक्स इट फर्दर. ये चीज तो DOPAT के OM में भी दी है, क्लॉज 8.1 of 17th May 2022, and the same benefits which are being given to SC ST candidates have to be given to you. So for example, if the cutoff for them is 45, whereas for yes. others is 50, then for you Okay. also it has to be 45, and even thereafter it can be lowered further as well if suitable candidates are not available. Okay, and then, still no PWD reservation is not there, sir. Still no. So you need to raise your voice about that. So At even least up without to the scale 1 it has to reservation, be there. without the reservation also, the zone of consideration you mean to say should be that will be different for persons with disabilities, right? Yes, yes. But I am also questioning up to MDCA also. Sir is still no PWD, no that type of. We are all equal. We are all attend the equal opportunities. I say. No, that is not a correct understanding, because treating everyone equally doesn't mean that you are not going to give affirmative action measures. That is Please not look at the correct please look at understanding. this issue also, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. So you write to us separately if you want to take it up against the bank, right? On missionaccessibility@gmail.com. You send us an email, and then we'll see if we can take it up legally. Okay, but my internal circular also there's a separate liaison officer. Don't another platforms use, only internal circulars, internal platforms use.
No, that's okay, but you Mm. send us whatever you have, Mm. then we'll see what can I be am done. also one time before 6 months I read the other platform. Immediately Sure. zonal head is calling, zonal HR is calling. Why are you go to use the another platforms? Okay. Got That it. type of questions, sir. So it's an Right. interesting thing, actually. Yes, one should take it up through all the available channels. And I think now I request our treasurer, Madam Suryajyoti, to formally Yeah. propose a vote of thanks. Sure. Hello, Thank hello. you. Thank you so much. I राजेश think, सर, राजेश सर, yes, who is there? जस्ट अ मोमेंट, रोहित पाटिल Yeah. बात कर रहा हूँ। Okay, okay. Hmm. एक Just one मेरा question. Yeah. सवाल ये है, Yeah. छोटा सा सवाल है मेरा। बोलिए। हाँ, तो बात यह है कि मेरा प्रमोशन जो हुआ था CC2 GBO स्केल 1 वो हुआ था 2025 में, दिसंबर 2025 में। हाँ, तो और इसमें क्या हुआ कि बाद में ये जो हमारे बैंक ने सर्कुलर इश्यू किया, मैंने हिमांशु सर को शेयर भी किया था वो, तो इसमें हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा नेशनल के लिस्ट में जो नाम आया है वो आया है 1 अप्रैल 2021 से। ठीक तो है। इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और नहीं, उससे तो नहीं मिलेगा। या फिर मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट तो जब एक्चुअली आपने चार्ज अज्यूम किया वही डेट से मिलेगा, बट सीनियोरिटी के लिए आपका वो माना जाएगा। मतलब आप 1 अप्रैल 2021 से स्केल 1 दिखा रहा है आपका। मेरा पीडीसी तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। क्या अपडेट नहीं हुआ? पर्सनल डेटा कार्ड जो होता है हमारा HRMS हाँ में, हाँ हाँ, तो वो आप बोलिए उनको कराने को। उसमें अभी तक मेरा 1/12/2025 ही दिखा रहा है। और दूसरी बात, हाँ एक हमारे नहीं, बैंक बट का जो पहली वाली कोल्हापुर बात जोन पे ही पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं। तो आपने उनको लिखा है इसके बारे में? लिखा तो नहीं कुछ। हाँ, तो आप लिखिए उनको और बोलिए कि ये वाला भी आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 माना जाए इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग योर लेंथ ऑफ सर्विस इन दैट पर्टिकुलर स्केल, ताकि फिर आपको आगे जाके उसका कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स मिल पाए। अब अब बेनिफिट बताइए। आपको बस इतना मिलेगा कि आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल इमीडिएटली जल्दी हो एग्जाम जाएंगे। दे पाएंगे आप तुरंत। राइट राइट। ओके, लेकिन हाँ। इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट की जहां तक बात है, तो एक बात इसमें ऐसी है कि हमारे बैंक का जो कोल्हापुर जोन है वहां हाँ पर उनको इंक्रीमेंट मिल चुका है। 3 या 4 इंक्रीमेंट कुछ उनको मिल चुके हैं उसके हिसाब से। मतलब नोशनल के बेस पे जिस भी साल उनका नाम आया है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिल चुका है, लेकिन हमारे पुणे जोन में तो अभी तक कुछ मिला नहीं है हमें। तो आप बोलिए ना देने के लिए, आप क्यों Rahul बोलते हैं ji, कि नहीं one मिलेगा? one आप बोल thing is दीजिए। there, Rajesh sir, या and Rahul ji. Actually, now I will after this point I will disconnect myself because I have started traveling. But the thing is, कि 2022 onwards तो इन्हें financial benefit include मतलब होना चाहिए इनके सैलरी में। देखिए 2022 will के start बाद from 21. या But the 22 के बाद financial अगर actual it should have नहीं been. देखिए 22 के बाद वो एक्सरसाइज रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया गया नोटिफिकेशन में कि नहीं दिया गया, पहली बात तो ये है। अगर 22-23 में बैंक ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया होगा तब तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिया होगा तो वी कैन आर्ग्यू कि यस दे शुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट विद बैकलॉग में, इनको कंसिडर किया जाए 22-23 में और तब इनको अपॉइंट किया जाए और फिर that is a फाइनेंशियल valid बेनिफिट्स भी point. दिए जाए। हाँ, हम्म और उसके So पिछले रोहित आप वाले पता के करें लिए बैंक में। उसके पिछले वाले के लिए तो नोशनली ही मिलेगा, बट इसमें इंक्रीमेंट मिलता है क्या? बिकॉज आई एम सरप्राइज नो कि नो नोशनल के बेसिस पे इंक्रीमेंट दे रहे हैं। नहीं कोई फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। बट ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ कोल्हापुर पेपर ब्रांच पे दे वालों रहे को हैं मिल सर। रहा है। सर वो कोल्हापुर में कैसे सर, गया है? मैं कोल्हापुर हाँ से ही बात कर रहा हूँ। हाँ उन्होंने सिर्फ पेपर पे यही जो कहा फिटमेंट गया है। फॉर्मूला लगाया है ना, वो फिटमेंट हाँ फॉर्मूला लगाया है पेपर पे। और उसके हाँ बाद अभी जो हमारे आयोग में जो इफेक्टिव डेट दिया है जुलाई से, तो उसमें वो सिर्फ इंक्रीमेंट दिया है, 2 इंक्रीमेंट दिया है। ये हाँ तो एक बीच वाला इंक्रीमेंट तो कुछ दिया नहीं, लेकिन एरियर्स दिया बीच नहीं वाला। एरियर्स नहीं दिए, लेकिन इंक्रीमेंट दिया है ना। हाँ तो दिया दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट अमाउंट्स टू फाइनेंशियल बेनिफिट एक्चुअली अगर आपने इंक्रीमेंट दे दिया तो। दैट्स व्हाट। राजेश लेकिन वो आपके सर केस में तो अभी आप मांग 26 में सकते दिया हैं ना, क्योंकि लेकिन दूसरे हाँ ब्रांच में मिल रहा है, तो आप हाँ डायरेक्टली आप मांग बोलिए, सकते हैं। हमको भी दीजिए, पूना वाले बोलिए हमको भी दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं कि जो भी है नहीं, हमको भी दीजिए, कोल्हापुर में दिया है तो। मैंने उनको वही बोला है, HR में मेरी वही बात हुई, लेकिन हम्म उनका कहना है कि इसका कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आया है, ये है वो है। उन्होंने क्या बोला है कि जो नए हम्म प्रमोटीज है
जो अभी क्लरिकल में काम कर रहे थे और जिनका इस नोशनल बेसिस पे स्केल 1 में नाम आया है, तो उनको उनको जब वो चार्ज लेंगे उसी दिन से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट अप्लीकेबल होगा। और जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर है जिनका मेरी तरह से प्रमोशन हुआ है, तो उनको जो है 1 जुलाई 2026 से मतलब नोशनली उनका फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे उस सर्कुलर में। नहीं एक्चुअली हिमांशु सर नहीं को मैंने मिलेगा शेयर भी किया फाइनेंशियल, था, शायद वो और उस पर हमें कुछ बता पाएंगे। नहीं मिलेगा फाइनेंशियल बेनिफिट एक्चुअली। बस ये है कि 22, 23, 24 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन इम्प्लीमेंट अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए लड़ सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंट बैकलॉग से होना चाहिए। हमारे पास 22-23 में इम्प्लीमेंट हुआ है, उस सर्कुलर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हुआ है ना, Then there is no then there is case no to be made point, out. yeah, nothing then. लेकिन Yes. मेरे जैसे केस में सर मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा। मैं अभी 20 में हो गया ना, एजम्पशन ऑफ चार्ज लिया मैंने 20 में। हाँ, अभी मेरा नोशनल इफेक्ट दे रहे हैं कि वो 18 से दे रहे हैं। नहीं तो आपको अच्छा, ये इंक्रीमेंट नहीं तो मिलेगा। 18-20 वाले सर फिर से आ हाँ तो गए। वही नहीं तो ये डिस्कशन हो नहीं चुका है। वो लेकिन सर वो थोड़ा हो वो चुका है फाइनेंशियल पहले। बेनिफिट का मेरे को थोड़ा समझ में नहीं वो आया दो इसके लिए। इंक्रीमेंट की बात है कि जो एक्चुअली कायदे से नहीं मिलना चाहिए, अगर देता है बैंक आपका तो अच्छी बात है। नहीं वो कायदे से that's अभी दिया what. उन्होंने, 26 में ही दे रहे हो सिर्फ। लेकिन वो बीच का एरियर्स का मेरा सवाल था सिर्फ। 18 से 20 का नहीं काउंट करेंगे सर नहीं हाँ काउंट 20 का, इंक्रीमेंट के लिए। हाँ वो ठीक है, वो नहीं काउंट करने दो, मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने क्लेरिकल में ही काम किया है। लेकिन 20 के बाद मैंने 1 में काम किया है ना। हाँ तो 20 से मिल रहा है ना आपको, 20 से नहीं तो वो मिल रहा सिर्फ है। पेपर में दे रहे हैं, वो पेपर में दे रहे हैं ना, वो सिर्फ नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। 20 से आपको स्केल 1 का पेमेंट और इंक्रीमेंट मिल रहा है सब कुछ। लेकिन कैसा है अभी नहीं आपको 20 मैं से एग्जांपल देता हूँ आप सर। यस या नो में जवाब दीजिए। 20 से आपको जो सैलरी मिल रही है वो क्लर्क की मिल रही है या स्केल 1 की नहीं मिल रही स्केल है? 1 की मिल रही है। तो फिर बस। खत्म बात। लेकिन मेरे को अभी स्केल अभी 18 में मेरा अगर हो गया, अगर पेपर में मैं 18 में दिखा रहा हूँ स्केल 1, तो मेरा स्टेज होगा 3। हाँ वो नहीं मिलेगा, वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो ठीक। वो नहीं नहीं मिलेगा। वो नहीं और मिलेगा 20 में मेरा स्टेज 5 हो जाएगा ना। हाँ पर नहीं लेकिन मिलेगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं मिलना है, सीधा सीधा बोला है हाँ सर्कुलर में। नहीं उन्होंने तो वो लिखा नहीं है कि मिलेगा। एजम्पशन ये ऑफ भेज चार्ज भी से देंगे मिलेगा, एक बार ग्रुप पे, ऐसा मैं वो लिखा है। 28/12-23 हाँ का सर्कुलर भेज दूंगा, हाँ, उसमें एक बार क्लियरली भेज दिए दीजिए। हैं, नॉर्म्स जो बिल्कुल भी है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक तो यू। यस, so मैडम सूर्यज्योति, Yes. प्लीज यू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स, वी आर ग्रेटफुल। I thank Mr. Rahul Bajaj for taking your valuable time and enlightening us on reservations in promotions, and also specially focusing on national promotion. He also addressed many participants' concerns very patiently. Thank you so much, sir. Thank Yes, I also indeed, we thank- are thankful for having such a distinguished Yes. guest speaking in such a simple manner to communicate it to everybody. No problem. Thank you very Yeah. much, and we Thank can you. do more of these if Thank there you is very much, need. everybody, and especially Rahul Bajaj, sir, Thank you, sir. Okay. for this All wonderful right. session. Thank you. Thank you. Shukriya. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye, sir.